السلام علیکم، شہرنامے کے ساتھ میں ہوں صبا شہزاد۔ نظر ڈالیں گے سب سے پہلے شہ سرخیوں پر۔ پنجاب کے مختلف علاقوں سمیت پاک پتن شہر اور مضافاتی علاقوں میں تیز آندھی کے ساتھ موسلا دھار بارش، موسم خوشگوار، محکموں کے متعدد فیڈر ٹرپ کر گئے، علاقہ تاریکی میں ڈوب گیا۔ بورے والا میں غیر جاری کئی علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 12 گھنٹوں سے تجاوز کر گیا، شہری سخت گرمی میں بل بلا اٹھے، کم وولٹیج کے باعث شہریوں کی لاکھوں روپے کی الیکٹرانک مصنوعات خراب ہو گئی۔ لودھرا میں پولیس نے 3 ماہ کی کارکردگی رپورٹ جاری کر دی۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر لودھرا سید قرار حسین شاہ کہتے ہیں کہ ضلعی پولیس نے 3 ماہ میں 27 گینگ کو گرفتار کیا، قبضے سے 1,29,09,230 روپے کا سامان برآمد کیا۔ حجرہ شاہ مقیم میں خاوند کا بیوی اور سالوں پر تشدد، ظلم کا شکار خاتون انصاف کے لیے در در بھٹکنے پر مجبور، پولیس کارروائی سے گریزاں، متاثرہ خاتون کا اعلی حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ وزیر آباد میں خاوند کے ظلم سے تنگ آ کر خاتون پریس کلب پہنچ گئیں، کہتی ہیں 4 روز تک بچیوں سمیت بھوکا رکھ کر وحشیانہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا، ساتھ ہی ساتھ بچیوں کا دودھ اور کھانا بھی بند کر دیا۔ والد نے 4 روز بعد عدالت کے ذریعے برآمد کروایا، شوہر اب انہیں سنگین نتائج کی دھمکیاں دے رہا ہے، اعلی حکام تحفظ فراہم کرے۔ چونیا میں اسسٹنٹ کمشنر کا روٹ پرمٹ کی خلاف ورزی پر 10 گاڑیوں کو 7 روز کے لیے تحویل میں لے لیا، کہتے ہیں بھاری ٹریفک کو شہر کے اندر داخل ہونے کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی۔ ٹریفک پولیس بھاری ٹریفک کو بذریعہ بلاکنگ پوائنٹس متبادل راستوں پر موڑ دے۔ اور عارف آلہ میں وابڈا ہائیڈرو الیکٹرک لیبر یونین کا اپنے مطالبات کے حق میں ہڑتال اور دھرنا، کہتے ہیں جب تک ہمارے مطالبات منظور نہیں کیے جاتے ہمارا احتجاج جاری رہے گا۔ شہ سرخیاں آپ نے جانی، شہرنامے کا کریں گے باقاعدہ آغاز، لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ شہرنامے کا کریں گے باقاعدہ آغاز۔ سب سے پہلے بات کر لیں گے اسلام آباد کے حوالے سے۔ آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد میں CIA پولیس نے کارروائی کر کے چوری میں ملوث منظم اغوانی گینگ کے 2 ارکان کو گرفتار کر لیا ہے، قبضے سے لاکھوں روپے نقدی اور 2 موٹر سائیکل برآمد کر لی۔ دیکھتے ہیں اس حوالے سے وسیم عباسی کی یہ رپورٹ۔ جی، اسلام آباد سے یہ پولیس کی اہم کارروائی دوران ریمانڈ گرفتار ملزم کی نشاندہی پر CIA پولیس نے چھاپہ مار کر گروڑ چوری میں ملوث گینگ کے دیگر 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ ملزمان کے قبضے سے چوری شدہ پاکستانی اور غیر ملکی کرنسی جس کی مالیت 1,72,000 بنتی ہے برآمد کر لی گئی۔ پولیس کے مطابق ملزمان کا گینگ 6 افراد پر مشتمل ہے، یہ دن کو ریکی کرتے اور رات کو بند گھروں کے تالے توڑ کر اندر داخل ہو کر واردات کرتے۔ ملزمان سے وارداتوں میں استعمال ہونے والے 2 موٹر سائیکل، اسلحہ اور دیگر سامان بھی برآمد کر لیا گیا۔ ملزمان کے خلاف اسلام آباد کے مختلف تھانوں میں گروڑ چوری کے کئی مقدمات درج ہیں۔ اس حوالے سے SP CIA نے بتایا ملزمان کے مزید ساتھیوں کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں اور جلد یہ ملزمان بھی قانون کے شکنجے میں ہوں گے۔ جی، اب خبر یہ ہے کہ بلوچستان عوامی پارٹی پنجاب کی جانب سے شہید سراج خان رئیسانی اور دیگر شہداء کی برسی کے موقع پر قرآن خوانی کا اہتمام کیا گیا۔ دیکھتے ہیں اس حوالے سے یہ رپورٹ۔ بلوچستان عوامی پارٹی پنجاب کی جانب سے شہید سراج رئیسانی کی برسی منائی گئی، جس میں کارکنوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور پنجاب کے صدر حاجی جہاں زیب خان نے اپنے خطاب میں کہا 5 دنوں میں اس شہید کی بنیاد پر، اس شہید کی خون کی بنیاد پر، جس میں 250 سے اوپر خودکش حملے میں شہید ہو گئے تھے، اس لوگوں کی بنیاد پر میں دیکھتا ہوں مجھے کوئی شوق نہیں ہے، مجھے کوئی بات کا
गम नहीं है। जबकि कारकुनों ने अपने झंडे हिलाकर अपने सदर को खराज तहसीन पेश किया। मेट्रो वन न्यूज से खुसूसी बात करते हुए पंजाब के सदर जहांजेब खान का कहना था कि हमारे साथ नारवा सलूक किया जा रहा है, हमारे मरे हुए भाइयों को कब्रिस्तान में जगह नहीं दी जाती, जबकि शिनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट की रसाई के लिए इंक्वायरी की जाती है, जिसकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं। पंजाबी हो, पठान हो, कोई भी हो, हम उसका पूरा हर जगह साथ देंगे, उनके साथ चलेंगे, उनके साथ काम करेंगे और कोई मुश्किलात आए हम उसके साथ खड़े हैं। ये वो पार्टी नहीं है कि जो किराए पे चलती है या किसी के बलबूते पे चलती है या किसी के नाम पर चलती है। इसके हर चीज के हम उसका पूरा साथ देंगे। तो हमारा नादरा का काम इंशाअल्लाह ताला ना होने के बराबर रह गया है। और जहां मैंने डीसीओ के दफ्तर मैंने ये बात उनसे कही कि आपके लोग पासपोर्ट में SVC लगा देते हैं, इंक्वायरियों में डाल देते हैं, लोग हज पर जाते हैं, उम्रों पर जाते हैं, इसमें ज्यादती ना करो। बरसी में हाजी असगर खान, गुलाब खान, अब्दुल्ला खान और दीगर ने खुसूसी शिरकत की। कैमरामैन कमर अली के साथ नदीम खान, मेट्रो वन न्यूज लाहौर। अब खबर शामिल करेंगे सादकाबाद के हवाले से। आपको बताएं कि सादकाबाद थाना सिटी की हुदूद में पढ़ाने से मना करने पर मौलिम ने 4 बच्चों पर तेजाब फेंक दिया। तेजाब गर्दी का शिकार होकर 4 बच्चे मामूली जख्मी हो गए। DPO मुंतजर मेहदी ने वाक़े का नोटिस ले लिया है। आपको अपडेट करें, DPO मुंतजर मेहदी की हिदायत पर पुलिस ने उसामा नामी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिम की निशानदही पर पुलिस ने तेजाब का आपको बताएं कि केन बरामद कर लिया। तेजाब गर्दी का वाकया हक टाउन में पेश आया। वुरसा ने इल्जाम लगाया है कि मौलिम बच्चों को हिरासा करता था। दूसरी जानब सिटी पुलिस SHO जहूरुद्दीन ने मौक़िफ़ दिया है कि मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। तफ्तीश मुकम्मल करके FIR दर्ज की जा रही है। साथ ही साथ मेरिट पर कार्रवाई होगी और इंसाफ के तमाम तकाजे पूरे किए जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बड़ा एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया इधर हक टाउन सादकाबाद में। तो यहाँ एक आदमी ने 4 बच्चों के ऊपर तेजाब फेंक कर, ये बच्चे उसके पास पढ़ते थे, किसी रंजिश की वजह से उससे तेजाब फेंक कर पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करके मुकदमे का इंदराज भी किया और मुलजिम को भी फौरी तौर पर गिरफ्तार किया। बहुत अफसोसनाक वाक़या है। इस तरह के लोग माशरे का नासूर हैं। इनका जिस हद तक हो सका बल्कि हम आखिरी हद तक इनके खिलाफ हम लड़ेंगे भी और कानूनी तमाम पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए इसको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे। गुजरात में पुलिस ने कार्रवाई करके नौजवान को जख्मी करने वाले 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। आपको बताएं कि DPO तौसीफ हैदर के मुताबिक चंद रोज कबल थाना रहमानिया के इलाके के रिहायशी तालिबे इल्म आपको बताएं अबू हुरैरा को मुखालिफ ग्रुप के कुछ शरपसंद मुलजिमान ने लड़ाई झगड़े के दौरान शदीद जख्मी कर दिया और मौके से फरार हो गए। बाद-ए-अज़ा थाना रहमानिया पुलिस ने मकतूल के चाचा की मुद्दइयत में मुकदमा दर्ज करके 3 मरकजी मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर लोधरा सैयद करार हुसैन शाह ने कहा है कि जिलाई पुलिस ने 3 माह में 27 गैंग को गिरफ्तार करके इनके कब्जे से 1 करोड़ आपको बताएं कि 30,09,230 रुपए का सामान बरामद कर लिया। साथ ही साथ लोधरा में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सैयद करार हुसैन शाह का कहना था कि जिलाई पुलिस ने इश्तेहारियों के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए A कैटेगरी के 56 इश्तेहारी, B कैटेगरी के 613 इश्तेहारी मुलजमान को गिरफ्तार किया। असलहे के 155 मुकदमात में 28 क्लाशनकोफ, 103 पिस्टल बरामद की। मुनशियात के 316 मुकदमात और 96 किलो 600 ग्राम चर्स के साथ साथ 1396 लीटर शराब भी कब्जे में ले ली गई।
چونیا میں اسسٹنٹ کمشنر نے روٹ پرمٹ کی خلاف ورزی پر 10 گاڑیوں کو 7 روز کے لیے تحویل میں لے لیا۔ آپ کو بتائیں کہ چونیا میں اسسٹنٹ کمشنر نے روٹ پرمٹ کی خلاف ورزی پر 10 گاڑیوں کو تحویل میں لے کر تھانے میں بند کر دیا۔ اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ بھاری ٹریفک کو شہر کے اندر داخل ہونے کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی۔ ٹریفک پولیس کو ہدایت دی گئی ہے کہ بھاری ٹریفک کو بذریعہ بلاکنگ پوائنٹس متبادل راستوں پر موڑ دیا جائے۔ اب خبر شامل کریں گے جہانیہ کے حوالے سے۔ آپ کو بتائیں کہ جہانیہ میں شہریوں نے گرمی کی شدت سے بچاؤ کے لیے دیہاتوں میں موجود ٹیوب ویلز کا رخ کر لیا۔ مزید جانتے ہیں جہانیہ میں میٹرو ون نیوز کے نمائندے راشد علی سے۔ راشد علی، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، جہانیہ کے شہریوں نے گرمی کی شدت کو کم کرنے کے لیے قریبی ٹیوب ویلوں کا رخ کر لیا ہے، جہاں پر نہ صرف وہ نہا کے گرمی کی شدت کو کم کر رہے ہیں اور موسمی پھل آم کو بھی کھا کر انجوائے کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ کچھ شہری موجود ہیں، مزید ان سے جانتے ہیں۔ جی بالکل، تمام دوستوں نے آج پروگرام بنایا ہے کہ گرمی کی شدت زیادہ ہونے کی وجہ سے پول پارٹی کا انتظام کرتے ہیں اور دوستوں کے ساتھ نہا کر خوب انجوائے کر رہے ہیں اور موسمی پھل آم بھی کھا رہے ہیں اور اس کے ساتھ لسی کا مزہ بھی لے رہے ہیں۔ جی بالکل، جیسا کہ شہریوں کا کہنا ہے کہ وہ نہا کر خوب انجوائے کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ مزید شہری موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ جی آج میں اپنے بابا کے ساتھ یہاں پہ آیا ہوں، ہم آم بھی کھا کر انجوائے کر رہے ہیں اور لسی سے بھی لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ ہم بہت انجوائے کر رہے ہیں، یہ گرمی کا کام۔ جی جیسا کہ شہریوں کا کہنا ہے کہ وہ نہا کے خوب انجوائے کر رہے ہیں، گرمی کی شدت کو بھی کم کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ انجوائے کرنے کے لیے موسمی پھل آم کو بھی کھا کر خوب انجوائے کر رہے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ راشد علی، آپ نے تفصیلاً آگاہ کیا۔ آگے بڑھیں گے، آپ کو بتائیں کہ عارف والا میں وابٹا ہائیڈرو الیکٹرک لیبر یونین نے اپنے مطالبات کے حق میں ہڑتال اور دھرنا دیا۔ عارف والا میں وابٹا ہائیڈرو الیکٹرک لیبر یونین کے مقامی رہنماؤں نے اپنے مطالبات کے حق میں قلم چھوڑ ہڑتال کی۔ اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ جب تک ہمارے مطالبات منظور نہیں کیے جاتے ہمارا احتجاج جاری رہے گا۔ حجرہ شاہ مقیم میں خاوند کے ظلم کا شکار خاتون انصاف کے لیے در در بھٹکنے پر مجبور ہو گئی۔ حجرہ شاہ مقیم میں خاتون گھریلو جھگڑے پر اپنے بھائیوں کے ساتھ میکے جا رہی تھی کہ ظالم شوہر نے چند غنڈہ عناصر کے ساتھ مل کر خاتون اور اس کے بھائیوں پر حملہ کر دیا اور انہیں تشدد کا نشانہ بنایا۔ واقعے کی اطلاع ملنے کے باوجود پولیس نے کوئی کارروائی نہیں کی۔ متاثرہ خاتون نے اعلیٰ حکام سے اپیل کی ہے کہ اس کا نوٹس لیا جائے۔ اب خبر شامل کریں گے بورے والا کے حوالے سے۔ آپ کو بتائیں کہ بورے والا میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ کئی علاقوں میں 12 گھنٹے تک بجلی بندش سے شہری حکومت سے نالا دکھائی دیتے ہیں۔ بورے والا اور اس کے گرد و نواح میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 12 گھنٹے تک جا پہنچا ہے۔ کئی علاقوں میں بجلی کی ٹرپنگ اور کم وولٹیج کے باعث شہریوں کی لاکھوں روپے کی الیکٹرانک مصنوعات جل چکی ہیں۔ بجلی کی مسلسل بندش سے علاقے میں پانی کے مسائل پیدا ہو گئے ہیں۔ لوگ سخت گرمی میں پانی کی بوند بوند کو ترس گئے ہیں۔ اس حوالے سے میپ کو حکام کا کہنا ہے کہ بجلی کا شارٹ فال اس لیے لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ وزیر آباد میں خاوند کے ظلم سے تنگ آ کر خاتون پریس کلب پہنچ گئیں۔ کہتی ہیں 4 روز تک بچیوں سمیت بھوکا رکھ کر وحشیانہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا، منہ سے خون نکلتا رہا، بچیوں کا دودھ اور کھانا بھی بند کر دیا ہے۔ وزیر آباد میں محلہ جلال پورہ کی رہائشی خاتون نے اپنے باپ کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ بیٹی کی پیدائش کے بعد خاوند کا رویہ اس کے ساتھ بدل گیا، اسے گالی گلوچ اور
ذہنی اذیتیں پہنچانا شروع کر دیں۔ فوزیہ اسلم نے بتایا کہ اس کا خاوند اپنی بچیوں سمیت اسے کئی روز تک بھوکا رکھتا۔ گزشتہ 4 دن سے اس نے ہمارا کھانا پینا بند کر رکھا ہے۔ دوائی مانگنے پر کمسن بچیوں سمیت تشدد کا نشانہ بنایا۔ سسرال والے بھی سائلہ کی مدد تک کے لیے نہ آئے۔ ظالم شوہر نے گھر کے کمرے میں قید کر دیا، جسے والد نے 4 روز بعد عدالت کے ذریعے برآمد کروایا۔ متاثرہ خاتون اور اس کے والد نے اپیل کی ہے کہ اس کی مدد کی جائے۔ اب خبر یہ ہے کہ پاک پتن میں سبزی اور سبز مسالہ جات کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو چکا ہے۔ پاک پتن میں عید قرباں قریب آتے ہی سبز مسالہ جات اور سبزیوں کی قیمتوں میں من مانا اضافہ کر دیا گیا۔ انتظامیہ منافع خوروں کو لگام ڈالنے میں ناکام دکھائی دے رہی ہے۔ شہریوں نے ارباب اختیار سے مطالبہ کیا ہے کہ سبزی اور سبز مسالہ جات کے ریٹ کم کیے جائیں۔ اسسٹنٹ کمشنر صفدر آباد کی زیر صدارت مسائل اور ان کے حل کے لیے اجلاس ہوا۔ اسسٹنٹ کمشنر صفدر آباد نے مسائل کے حل کی یقین دہانی کراتے ہوئے عوام کو سہولیات دینا اولین ترجیح ہے۔ دیکھتے ہیں اس حوالے سے یہ رپورٹ۔ اسسٹنٹ کمشنر صفدرآباد قرۃ العین ظفر نے اپنے آفس میں پریس کلب صفدرآباد کے صحافیوں کے ساتھ ملاقات کرتے ہوئے کہا کہ منڈی معاشیہ میں بچوں اور بوڑھوں کو جانے سے روکیں۔ صحافی عید الاضحیٰ کے سلسلہ میں خصوصی آگاہی مہم چلائیں۔ انہوں نے کہا کہ تحصیل انتظامیہ بھرپور جدوجہد کر کے پل دوبسڑی سے سڑک کی تعمیر کا کام شروع کروایا، جبکہ مین بازار بہت جلد تعمیر کروایا جائے گا۔ محکمہ ہائی وے کو بلا کر نواز شریف چوک سڑک کا کام 5 کروڑ تخمینہ لگوایا ہے، جس پر بہت جلد کام شروع ہو جائے گا۔ اس موقع پر نائب تحصیلدار چودھری تنویر احمد اور صحافیوں کی کثیر تعداد موجود تھی۔ کیمرہ مین زریاب حسن کے ساتھ چودھری لیاقت علی، میٹرو 1 نیوز صفدرآباد۔ روہیلہ نوالی کے چیف پارٹنرز کو پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کی جانب سے کتابیں تقسیم کی گئیں۔ پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کی جانب سے روہیلہ نوالی کے دی نوبل اسکول آف ایجوکیشن، اقرا ہائی اسکول، المصطفیٰ پبلک اسکول، علی پبلک اسکول، اویس پبلک اسکول اور دیگر اسکول مالکان نے کتابیں وصول کی۔ پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کی طرف سے مفت کتابوں کی ترسیل کا سلسلہ آئندہ چند دنوں تک جاری رہے گا۔ اب خبر شامل کریں گے جڑاں والا کے حوالے سے۔ آپ کو بتائیں کہ جڑاں والا میں نوجوان کے اغوا اور اس کی عدم بازیابی کے خلاف اہل خانہ نے احتجاج کر کے سڑک ٹریفک کے لیے بلاک کر دی۔ دیکھتے ہیں اس حوالے سے یہ رپورٹ۔ اسلام آباد کی تحصیل جڑاوالا کے پولیس اسٹیشن سٹی کے سامنے اغوا کی مبینہ واردات کے خلاف اغوا ہونے والے محمد فیصل ولد ممتاز کے لواحقین نے احتجاج کیا۔ لواحقین کا اس موقع پر کہنا تھا کہ ان کے جوان بیٹے کو ان کے مخالفین نے عداوت کی وجہ سے اٹھا لیا ہے۔ لواحقین نے اس موقع پر مقدمہ کے اندراج کے لیے بھی احتجاج کیا۔ اس موقع پر ننکانہ روڈ کو بلاک کر دیا گیا۔ مزید اس موقع پر لواحقین کا کہنا تھا تابو تو چاقو ماریا جب ایتی دیا نال ایتے آیا ہے گا سرٹیفکیٹ کراون انہاں میرے پوت نو ماریا۔ اوے لو سرکاری ہسپتال ساڈا بچہ ہے، انہاں ساڈا کھا چھڈیا ہے، اللہ جانے
ਕਿਤੇ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਟ ਛੱਡਿਆ ਇਹਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ FIR ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਸਾਡੀ ਪਰ ਜ਼ਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਟੀ ਗਈ। ਅੱਜ ਤੀਸਰਾ ਦਿਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹਾਲ ਪਾਈ ਖੜੀਆਂ ਏ। ਸਾਡਾ घर नहीं कोई। लवाहिकीन का ये भी कहना था कि चंद दिन पहले होने वाली लड़ाई की वजह से उनके बेटे को अगवा किया गया है, जो कि तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल जड़ावाला में अपना मेडिकल करवाने के लिए आया हुआ था। कैमरामैन मेहरान आबिद के साथ मोहम्मद रिजवान आजिज, फैसलाबाद। अब खबर लोधरा के हवाले से आपको बताएं कि लोधरा में सरकारी सरपरस्ती में नहरी पानी चोरी का सिलसिला ताहाल जारी है। आपको बताएं कि काश्तकारों ने महकमा नहार के SDO और सब इंजीनियर के खिलाफ एहतजाज करते हुए कहा कि SDO और सब इंजीनियर चौधरी अमीन बासर जमींदारों से मिली भगत करके सरकारी पानी चोरी करवाने के साथ साथ इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करते हुए अपनी सरपरस्ती में सरकारी पानी फरोख्त भी कर रहे हैं। टेल के काश्तकारों तक नहरी पानी नहीं पहुंच पाता और जमीनी पानी भी कड़वा होने की वजह से फसलें तबाह हो रही हैं। साथ ही साथ मवेशी भी प्यास से मर रहे हैं। किसानों ने कहा कि महकमा नहार की तरफ से ये हमारा मौशी कत्ल किया जा रहा है। टेल के काश्तकारों ने महकमा नहार और बासर जमींदारों के खिलाफ नारेबाजी भी की और डिप्टी कमिश्नर लोधरा, कमिश्नर मुल्तान और सेक्रेटरी एरीगेशन से फौरी नोटिस का मुतालबा भी किया है। सियालकोट सिटी सर्कल के थाना रंगपुरा के इलाका इस्लामिया कॉलेज रोड पर डकैती की वारदात। 2 मुसल्लह डाकू असलहे के जोर पर मेडिकल स्टोर से नकदी लूट कर फरार हो गए। वारदात की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई है। सियालकोट सिटी सर्कल के थाना रंगपुरा के इलाका इस्लामिया कॉलेज रोड पर मेडिकल स्टोर से 2 मुसल्लह डाकू असलहे के जोर पर 55,000 रुपए नकदी लूट कर फरार हो गए। वारदात की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। फुटेज में देखा जा सकता है कि मोटरसाइकिल पर सवार 2 मुसल्लह डाकू मेडिकल स्टोर में दाखिल हुए और स्टोर के मालिक से तकरीबन 55,000 रुपए नकदी लूट कर बासानी फरार होने में कामयाब हो गए। सिटी सर्कल में बढ़ती हुई डकैती की वारदातों से ताजर बरादरी खौफजदा हो चुकी है। बेलगाम डाकू आए रोज शहरियों से इनकी जमा पूंजी लूट कर फरार हो जाते हैं, जबकि पुलिस वारदातों की CCTV मंजर आम पर आने के बावजूद भी इन्हें गिरफ्तार करने में नाकाम दिखाई दे रही है। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बुलेटिन का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएं कि ईद कुर्बान की आमद है और मुल्क भर की तरह अलीपुर में भी मवेशी मंडी कायम कर दी गई है। मजीद अहवाल जानते हैं उसामा नजर से। उसामा नजर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ईद कुर्बा की आमद है और मुल्क भर की तरह अलीपुर में भी मवेशी मंडियों की जो रौनकें हैं वो बहाल हो चुकी हैं। मवेशी मंडी के अंदर जो व्यापारी अपने जानवर बेचने आते हैं उनको कई किस्म की मुश्किलात का सामना है। उनका कहना है कि नाजायज़ तौर पर पर्ची के जरिए पैसे वसूल किए जा रहे हैं और ना सिर्फ पैसे वसूल किए जाते हैं बल्कि तशद्दुद का निशाना भी बनाया जाता है और सहूलियात का भी फुकदान है। हमारे साथ व्यापारी मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि इनको किन किस्म की मुश्किलात का सामना है। जी भाई थप्पे नाल मारन 500 रुपये, ना पानी है ना कचरा है ना कुछ है। गिरवान पकड़ के रोड को तले के 5 ढांडा खाद के 500 जो तो ढांडा छोड़े ना, बदमाशी भी चल दी है था। जी आपने शहरी का सुना, वो कहते हैं कि एक तो हमसे 500 रुपए पर्ची का भी ले रहे हैं और इसके साथ किसी किस्म का सहूलियात वो नहीं है, ना पीने के लिए पानी है ना बैठने के लिए कोई सहारा है। एक और शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे पूछते हैं। जी भाईजान बात ये है, हम मुल्तान से आए हुए माल खरीदने के लिए, इधर जो व्यापारियों कहते हैं 500 रुपए दे, हम पैसे देते हैं, व्यापारी हमारे को माल नहीं देता, हम गाड़ियां लेके खाली वापस जा रहे हैं। बात करो, लड़ते भी ना ठेकेदार हमारे साथ। एक रोड पे इन्होंने गुंडा छोड़ा हुआ है, डांग एक थप्पड़ का माल नहीं है, वो हमारे को कहा जाता है कि मैं बंदा मार दूंगा, मुझे मार दो। ये शहरियों का मौक़िफ़ आपने सुना, ये कहते हैं एक तो हमसे 500 रुपए जो लिए जा रहे हैं वो भी नाजायज़ हैं और इसके साथ साथ बदमाशी भी दिखाई जा रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया उसामा नजर, आपने तफसीलन आगाह किया। मुल्क भर की तरह चिश्तिया में भी महंगाई का जिन बोतल से बाहर आ चुका है। रोज बरोज सब्जी और फलों के रेट्स आसमान से बातें करने लगे हैं। मौजूद प्राइस कंट्रोल कमेटी ख्वाबे खरगोश के मजे ले रही है। आपको बताएं कि चिश्तिया में सब्जी दिन ब दिन महंगी हो रही है, जिससे शहरियों की मुश्किलात बढ़ गई हैं। इलाका मकीनों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि रोज बरोज बढ़ती हुई महंगाई को कंट्रोल किया जाए।
बहावल नगर में पुलिस ने कार्रवाई करके मोटरसाइकिल और मवेशी चोरी में मुलव्वस मुलजिम को गिरफ्तार करके मोटरसाइकिल्स और मवेशी बरामद कर लिए। आपको बताएं कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर बहावल नगर कुद्दूस बेग की हिदायत पर जिले भर में जराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन कामयाबी के साथ जारी है। साथ ही साथ SHO थाना सदर हारूनाबाद मोहम्मद बशीर की सरबराही में सब इंस्पेक्टर नाजिम अली ने पुलिस टीम के हमरा जदीद टेक्नोलॉजी को बरुए कार लाते हुए मुलजिम मोहम्मद अली वल्द मोहम्मद रफीक को गिरफ्तार करके 6 लाख रुपए मालियत का माल मसरूका सामान बरामद कर लिया। DPO कुद्दूस बेग ने सदर हारूनाबाद पुलिस की इस शानदार कार्रवाई को सराहते हुए पुलिस टीम को तारीफी असनाद और नकद इनाम देने का ऐलान किया है। कोट सब्जल का रिहायशी शेर अली 20 बरस से शीशम और दयाल की लकड़ी पर कुरानी आयात लिख रहा है, मगर इसे इस मेहनत के पैसे नहीं मिलते। बाप का फन अब बेटा सीखने को तैयार नहीं। देखते हैं इस हवाले से ये रिपोर्ट। सादिकाबाद का शेर अली अरसा 20 साल से शीशम और दयाल की लकड़ी पर कुरानी आयात लिखने का काम कर रहा है। शेर अली चंद औजारों की मदद से लकड़ी पर आयात कुंदा करता है और इन फनपारों को बनाने के लिए 5 दिन लग जाते हैं। शेर अली इस फन को जिंदगी के कीमती साल देने के बावजूद आज कसम पुरसी की जिंदगी गुजार रहा है। जदीद दौर में इस छोटे से शहर में इसके फनपारे खरीदने वाला कोई नहीं। 20 साल से मैं ये काम कर रहा हूँ, शीशम दियार और लासानी पे अल्लाह के नाम और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुख्तलिफ कुरानी आयत लिख रहा हूँ। ये काम तो बहुत ही मुश्किल है, लेकिन इसका मुझे मुआवजा नहीं मिलता। छोटा सा हमारा शहर है। कुरानी आयात और अल्लाह के नाम लकड़ी के सीने पर तख्लीक करने वाले का बेटा इस फन से मुतमईन नहीं। कई दिनों की मेहनत से तैयार होने वाले फनपारों की कीमत गाहक इतनी कम लगाते हैं कि शेर अली दिल बर्दाश्ता हो जाता है। इसीलिए शेर अली का बेटा अपने वालिद के फन को अपनाना नहीं चाहता। शेर अली का फन दौरे जदीद की मशीनों ने छीन लिया है। खरीदार भी जदीद मशीनों से बने कम कीमत और दिलकश फनपारों को तरजीह देते हैं। मंजूर अहमद, मेट्रो 1 न्यूज, कोट सब्जल। अब खबर यह है कि गुजरांवाला में रेलवे ट्रैक बना लोहे का पुल इंतजामिया की अदम तवज्जोही की वजह से खस्ता हाली का शिकार है। फाटक की बंदिश के मौके पर मोटरसाइकिल सवार हजरात इस पुल को इस्तेमाल करते हैं और सदराज पुल की मरम्मत न होने की वजह से पुल का फर्श और जंगले जगह जगह से उखड़ चुके हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज मोहम्मद नदीम डार से। नदीम डार, अपडेट कीजिएगा। जी, इस वक्त हम यहाँ गोंदला फाटक पर मौजूद हैं। यहाँ पर रेलवे की पटरी पर लोहे का पुल बनाया गया था मोटरसाइकिल सवार हजरात के गुजरने के लिए, जो काफ़ी साल हो गए हैं, लेकिन उसकी दोबारा महकमा हाईवे की जनरल जिला इंतजामी की जनरल से इसके मेंटेनेंस का काम नहीं किया जा रहा। जगह जगह से पुल टूट फूट का शिकार है। जंगले वगैरह और उसके जो फर्श वगैरह उखड़ गए हैं। जब यहाँ पर से मोटरसाइकिल सवार हजरात गुजरते हैं तो जो मोटरसाइकिल सवार हजरात गुजरने की वजह से पुल अक्सर जो है वो नजर आता है, झूलता नजर आता है। शहरियों का कहना यही है कि महकमा हाईवे और जिला इंतजामिया को चाहिए कि इसकी मेंटेनेंस को फौरी जो है इस पर अमल दरामद कराया जाए, और अगर खुदा ना खास्ता अगर इसकी मेंटेनेंस वगैरह ना कराई गई तो किसी वक्त भी ये किसी नाखुशगवार हादसे का सबब बन सकता है। जी, बहुत शुक्रिया नदीम डार, आपने तफसीलन आगाह किया। पेट्रोल की कीमत में इजाफे और चीनी नायाब होने के बाद सब्जी और मसाला जात की कीमतों में भी इजाफा हो चुका है। जिला इंतजामिया और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट सब्जी और मसाला जात की कीमतें कंट्रोल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई देती है। आपको बताएं कि रेनाला खुर्द में ईद कुर्बान करीब आते ही मसाला जात और सब्जियों के रेट आसमान को छूने लगे हैं। टमाटर 140 रुपये, अदरक 400 रुपये, लहसुन 350 रुपये, प्याज 80 फी किलो, जबकि सब्ज मिर्च और सब्जियां भी महंगे दामों फरोख्त होने लगी हैं। इंतजामिया मुनाफाखोरों को लगाम डालने में नाकाम दिखाई दे रही है। शहरियों ने अरबाब इख्तियार से मुतालबा किया है कि सब्जी और सब्ज मसाला जात के रेट कम करें ताकि शहरी 2 वक्त का खाना खा सकें।
तहसील आरिफ वाला में मेहनत कश मोहम्मद सुहेल उर्फ गोगी डॉक्टर की मुबैना गफलत के बायस मौत के मुंह में चला गया। आपको बताएं कि मेहनत कश मोहम्मद सुहेल हेपेटाइटिस बी की रिपोर्ट लेकर सरकारी अस्पताल आरिफ वाला पहुंचा। मुकम्मल रिपोर्ट आने पर मेहनत कश को हेपेटाइटिस की इंचार्ज लेडी डॉक्टर ने हेपेटाइटिस बी के बजाय हेपेटाइटिस सी की दवाई दी और साथ ही साथ जिसके बायस इसकी हालत गैर हो गई। लाहौर में डॉक्टर को चेक कराने पर मरीज को पता चला कि लेडी डॉक्टर ने इसको गलत दवाएं लिखकर दी, जिसके बायस इसकी हालत गैर हुई। मेहनत कश मोहम्मद सुहेल ने वज़ीर आला पंजाब जनाब उस्मान बुज़दार से अपील की है कि इसका नोटिस लिया जाए। पाकिस्तान जिंदाबाद मोमेंट शाहिद ग्रुप के चेयरमैन शाहिद बंगश ने मरकजी तंजीम से आपको बताएं कि इस वक्त नाता तोड़कर अपनी तंजीम को पूरे मुल्क में फाल करने का ऐलान कर दिया है। देखते हैं इस हवाले से ये रिपोर्ट। पाकिस्तान जिंदाबाद मूवमेंट शाहिद ग्रुप की प्रेस कॉन्फ्रेंस सूबाई चेयरमैन शाहिद बंगश ने मरकजी तंजीम से नाता तोड़कर अपनी तंजीम को पूरे मुल्क में फहाल करने का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान जिंदाबाद मूवमेंट सूबाई चेयरमैन ने पाकिस्तान जिंदाबाद मूवमेंट की मरकजी तंजीम से अलहदगी का ऐलान करते हुए पाकिस्तान जिंदाबाद मूवमेंट शाहिद ग्रुप मरकजी तंजीम का ऐलान कर दिया, जो चारों सूबों और आज़ाद कश्मीर की नुमाइंदगी करेंगे। तहसील और डिस्ट्रिक्ट कौंसिल के सतह पर तंजीम साजी की जाएगी। पूरे पाकिस्तान में ऐलान करना चाहते हैं कि हम पाकिस्तान जिंदाबाद मूवमेंट जिसका चेयरमैन परवेज शाकिर जो कि लाहौर में बैठे हैं वो है, उनको छोड़ के, उनके ग्रुप को छोड़ के अपना ग्रुप का आज हम ऐलान कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बजवाड़, मुमन, खैबर, उरगज़ई और कोहाट की तंजीम के सदूर भी मौजूद थे। इस मौके पर पाकिस्तान जिंदाबाद मूवमेंट शाहिद ग्रुप के मरकजी चेयरमैन शाहिद बंगश का कहना था कि जो पुराना हमारा पाकिस्तान जिंदाबाद मूवमेंट था, जिसकी मरकजी क़यादत परवेज शाकिर, अकरम दिल और चौधरी इसरार कर रहे थे, वो हमारे साथ हर जगह, हर मोड़ और हर चीज़ पर झूठ पे झूठ बोलते जा रहे थे और अपने बेनिफिट लेने की खातिर हमारे मुअज़्ज़ज़ इदारों का नाम कर उनको बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे, जिसके तमाम तर रिकॉर्डिंग और सबूत हमारे पास मौजूद है। और उनके तमाम तर झूठ साबित होने के बाद हमने फैसला किया कि हम पाकिस्तान जिंदाबाद मूवमेंट जिसका सारा कुछ सेम होगा, लेकिन उनसे अलहदगी के निशानी के तौर पर हमने पाकिस्तान जिंदाबाद मूवमेंट शाहिद ग्रुप का ऐलान कर दिया। कैमरा टीम के हमरा निसार बंगश, मेट्रो 1 न्यूज़, ज़िला हंगू। मानावाला में असिस्टेंट कमिश्नर शब्बीर भट्ट ने मुख्तलिफ बाजारों का दौरा किया। जायद नर्ख पर अशिया फरोख्त करने पर मुतादिद दुकानदारों पर जुर्माने आयद किए। मानावाला असिस्टेंट कमिश्नर शेखुपुरा ने जायद नर्ख पर अशिया फरोख्त करने की इत्तला पर मानावाला के मुख्तलिफ बाजारों का दौरा करके दुकानदार को 53,000 रुपये जुर्माने किए, जिनमें मेडिकल स्टोर और जनरल स्टोर और मुख्तलिफ दुकानें शामिल हैं। मानावाला असिस्टेंट कमिश्नर ने दुकानदार को SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करने की भी हिदायत की। मुजफ्फरगढ़ में घरेलू तनाज़े पर 2 ग्रुप्स में तसादुम हो गया। तसादुम में एक शख्स जाम बहक, 3 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक दोनों ग्रुप आपस में रिश्तेदार थे। आपको बताएं, मुजफ्फरगढ़ के नवाही इलाके में घरेलू तनाज़े पर 2 ग्रुप्स में तसादुम हो गया। फायरिंग के तबादले में एक शख्स जाम बहक, 3 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक दोनों ग्रुप आपस में रिश्तेदार थे। जाम बहक होने वाले शख्स की नाश और जख्मियों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया है। अब रुख करते हैं कबीर वाला का रिहायशी उमर चिश्ती गुर्दों की बीमारी की वजह से बिस्तर मर्ग पर किसी मसीहा का मुंतजिर है। देखते हैं इस हवाले से ये रिपोर्ट। कबीरवाला के इलाके तारिकाबाद का रिहायशी उमर चिश्ती, जो गुर्दों के आर्जे में मुब्तला है, इस मर्ज में इसके भाई, भाभी और बीवी वफात पा चुके हैं। उमर चिश्ती के हर 4 रोज बाद डायलिसिस होते हैं, जिन पर हजारों रुपए खर्चा आता है। जमा पूंजी अपने इलाज पर लगा चुका है। अब इलाज के लिए फूटी कौड़ी भी नहीं है। गुर्दे का मरीज हूं मैं, हर चौथे दिन मेरे गुर्दे वाश होंदे ने और लिहाजा मेरी मदद की जाए। वज़ीर आला पंजाब ਨੂੰ मैं रिक्वेस्ट कर सा कि मेरी कोई मदद की जाए। गुर्दे वाश और हर 4 दिन बाद लिहाजा भाई बहुत गरीब है,
5-4 बच्चे भी हैं। मेरे भाई तो कोई इलाज कराने वाला कोई नहीं। उमर चिश्ती के 5 बच्चे हैं, बड़ा बेटा भी बीमार है। हुकूमती इमदाद न मिलने के बाइस अब किसी मसीहा का मुंतजिर है जो इलाज के साथ घर के राशन का भी बंदोबस्त करे ताकि घर का चूल्हा जलता रहे। कैमरा टीम के साथ नदीम गिल, मेट्रो 1 न्यूज, कबीरवाला। ढोल का शुमार दुनिया के कदीम तरीन साजों में होता है। ज़माने माजी में हाकिम वक्त और काजी की तरफ से जारी करदा अहकामात ढोल बजाकर लोगों को इकट्ठा किया जाता था, जबकि जंगों में तबल बजाने के लिए इसी का इस्तेमाल किया जाता था। ताहम वक्त बदलने के साथ ये खुशी का सार बन गई है। देखते हैं इस हवाले से ये रिपोर्ट। का शुमार दुनिया के कदीम तरीन साजों में होता है। ज़माना माजी में हाकिम वक़्त और काजी की तरफ से जारी करदा अहकामात ढोल बजाकर लोगों को इकट्ठा किया जाता था, जबकि जंगों में तबल बजाने के लिए इसी का इस्तेमाल किया जाता था। ताहम वक़्त बदलने के साथ ही ये खुशी का इस्तारा बन गया। और शादी के मौके पर ढोल का इस्तेमाल आम होने लगा और इस हवाले से खानेवाल के नवाही इलाके बस्ती गुदारा में आज भी 200 से 250 खानदान के अफराद नस्ल दर नस्ल इसी फन से मुंसलिक चले आ रहे हैं। इन्हीं घरानों में से एक घर उस्ताद मोहम्मद हयात का है, जिनके अफराद ढोल, बीन, शहनाई के अलावा झूमर पार्टी के हमरा पंजाब भर में अपने फन का मुजाहरा करके अपने इलाके और शहर का नाम रोशन कर चुके हैं, जिनमें उस्ताद अब्दुल शकूर और मास्टर अजहर हुसैन के नाम भी शामिल हैं। इस ग्रुप में मोहम्मद हयात बुनियादी तौर पर शहनाई के उस्ताद माने जाते हैं, ताहम ढोल, बीन और शहनाई बजाने के अलावा इन्हें नए सिरे से तैयार करने का फन भी खूब जानते हैं और इस फन को नस्ल दर जिंदा रखे हुए हैं। कैमरा टीम कैमरा रो मोहम्मद इमरान, मेट्रो 1 न्यूज, खानेवाल। बुलेटिन आपने मुलाहिजा किया। इसके साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। कुछ ही देर में हेडलाइंस के साथ हाजिर होंगे। हमारे साथ रहिए।